کیا ملا کوئی، تم نے ڈھونڈا ہے کیا ملا کوئی، مثل شبیر دوسرا کوئی۔ ہم سری کر رہے ہیں حیدر کی، ہم سری کر رہے ہیں حیدر کی، ان کو دکھلائے آئینہ کوئی۔ جز نبی و خدا کے اے مولا، جز نبی و خدا کے اے مولا، تم کو سمجھا نہ تیسرا کوئی۔ بغض حیدر کے کارخانے میں، بغض حیدر کے کارخانے میں، شمر بنتا ہے حرملا کوئی۔ ڈھونڈتا پھر رہا ہے جنت کو، ڈھونڈتا پھر رہا ہے جنت کو، اس کو دکھلائے کربلا کوئی۔ عمر بھر کون کس کو روتا ہے، عمر بھر کون کس کو روتا ہے، غم سرور ہے معجزہ کوئی۔ بس حسین آپ ہی کے لشکر میں، بس حسین آپ ہی کے لشکر میں، نہ ملا ہم کو بے وفا کوئی۔ حشر میں بنت مصطفیٰ کے سوا، حشر میں بنت مصطفیٰ کے سوا، دوسرا کب ہے آسرا کوئی۔ ذکر شبیر کا یہ صدقہ ہے، ذکر شبیر کا یہ صدقہ ہے، ورنہ واحد کو پوچھتا کوئی، ورنہ واحد کو پوچھتا کوئی۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین،
وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین السلام علیک یا قمر العشیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون۔ ان اللہ هو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد۔ خداوند متعال آپ لوگوں کو صحت، عافیت، تندرستی اور خیر و سلامتی عطا فرمائے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ہم روزانہ آپ کے حضور کربلا مقدسہ سے آپ کے اور کربلا کی اس سرزمین کے درمیان کوشش کرتے ہیں ارتباط پیدا کریں، اور یہ ارتباط آپ چند جہات سے دیکھ سکتے ہیں: جودو ٹی وی، اراکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پلیٹ فارم ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی آپ ہمارے اس ٹی وی کو دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند متعال انسان کے لیے کافی سارے اوقات، کافی سارے مواقع، کافی سارے حالات لے کر آتا ہے جس کے اندر انسان کے اور دوسرے انسان کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے۔ ان اختلاف رائے کے اندر انسان کبھی کبھار شدت پسند ہو جاتا ہے، اور اس شدت کے اندر انسان کا جی چاہتا ہے کہ طرف مقابل کے اوپر چڑھائی کر دے، اس کے اوپر بس نہ جانے کیا کچھ اس کے دل میں جو آئے وہ کہنا شروع کر دے، اور یعنی سخت ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے کہہ دے تشنجی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جس طریقے سے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ وہ اینگری ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، اور کبھی کبھار وہ دوسرے کے بارے میں ایک عجیب سی رائے قائم کر لیتا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو تو اس وقت میں آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے طرف مقابل کی کیفیت کیا ہے، حالات کیا ہیں، اور وہ اس کی موقعیت کیا ہے، کس طریقے سے وہ محسوس کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ کوئی پریشانی کی حالت میں ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ قبول نہیں کرنا چاہ رہا یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں کیا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے حالات ایسے نہیں ہوتے۔ مثلا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس دلیلیں ایسی ہوتی ہیں دوسرے شخص کے پاس کہ وہ آپ کی دلیلوں کو قبول نہیں کر رہا ہوتا۔ چلے آپ کی دلیل آپ نے دی، آپ حق بیان کر دیں، دوسرے کی دلیل اس کے سر پہ چھوڑ دیں۔ دوسری بات کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دلیل اور رائے کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی معلومات جو اس نے کہیں سے سنی ہیں، جس طریقے سے بھی درک کی، انہی کے اوپر وہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے ماحول، ایسی محیط، ایسے شہر، ایسے مکان میں زندگی کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے قریب حقائق کو پھٹکنے ہی نہیں دیا جاتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ان حقائق کا۔ اس کے ذہن میں وہی ہوتا ہے جو اس نے سنا ہوتا ہے یا جو اسے بتایا گیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن کے اندر تشویش ہوتی ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اس کے ذہن کے اندر فکریں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہا ہوتا۔ لہذا آپ لوگوں کو اسی طریقے سے آپ کو شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو تفہیم و تفاہم کریں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ہم کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کچھ باتیں تو سمجھا نہیں پاتے آپس میں، تو لہذا ہمیں قرآن مجید سے مدد لینی چاہیے کہ قرآن مجید کہتے ہیں ذالک بانہم قوم لا یعلمون، کیونکہ وہ ایسی قوم ہے جسے پتہ نہیں لگ رہا ہوتا۔ کبھی ولکن اکثرہم لا یعلمون،
कभी कभार ऐसा होता है अक्सरियत जो है लोगों की जानने वाली नहीं होती, लिहाजा हमें अपने इल्म को दूसरे पे इतलाक करते वक्त समझाते वक्त समझाने का मौजू रखना चाहिए, ज़बरदस्ती इजबार नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए आपस में प्यार मोहब्बत को जगा दें, एक मोहब्बत की कैफियत के अंदर आ जाएं। इस तरीके से ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को समझाने वाले बन जाते हैं। काफ़ी सारी आयात हैं इसके अंदर के मासूमीन अलैहिस्सलाम से भी लोग जल्दी से कबूल नहीं करते थे। मासूम अलैहिस्सलाम को समझाने के लिए काफ़ी सारी दलीलें देनी पड़ती थी। यही बात चल रही थी कि मसलन मासूम अलैहिस्सलाम को पहचानने की कितनी दलीलें हो सकती, एक अकली होती है, एक नकली होती है। नकली के अंदर दो किस्में हो जाती है, कुरान हो जाता है, हदीस हो जाती है। फिर इस कुरान और हदीस के अंदर हमारे साथ तफसीर भी ज़रूरी है, हालात भी ज़रूरी हैं, बयान करने वाला मुफस्सिर सही भी ज़रूरी है। फिर मासूम अलैहिस्सलाम की तरफ से जो मुस्तकीम थी उन दलीलों में से ये भी हो सकता है कि मासूम अलैहिस्सलाम मौजज़ा करके दिखाएं, मतलब शक्कुल कमर करके दिखा दिया। कभी मासूम अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि चांद को पलटा के दिखा दिया, चांद के दो टोटे कर दिए। कभी ऐसा किया कि सूरज को लौटा के रख दिया। कभी कभार ऐसा हुआ कि मासूम अलैहिस्सलाम ने किसी दीवार को सोने का बना दिया। कभी ऐसा हुआ कि मासूम अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे मौजाद दलीलें मासूम अलैहिस्सलाम के लिए भी ज़रूरी थी। क्यों? सामने वाले समझ की समाअत, सामने वाले शख्स की समाअत इतनी नहीं होती या उसकी समझ इदराक इतना नहीं होता, तो समझाने के लिए दलीलों की ज़रूरत होती है। लिहाजा कुरान मजीद में काफ़ी सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के से भी ऐसी वाक़यात लिखे, समझाने की कोशिश करनी चाहिए, समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। अगर लोग समझ लेते वलो अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्दि वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। क्या हुआ कि लोग अगर समझ जाते तो उनके ऊपर आसमान की रहमतों के दरवाजे खुल जाते, लेकिन लोगों ने झूठ बोला, तकज़ीब की, उन बातों का इनकार किया। क्या हुआ? फिर उन्हें वही मिला जो उनकी साई थी, जुस्तजू थी। लिहाजा हमें ऐसे मौके के ऊपर दुआ करनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? अदि मुल्क का काला मुल्क का बिलुत्फ़ कल खफ़ी। ऐ अल्लाह तू अपनी रहमत को अपने इस मखलूक के ऊपर ज़्यादा कर दे। किस तरीके से करेगा? कि इस तरीके से कि अल्लाह तबारक व तआला से हम रहमत की तलब करेंगे। अल्लाहुम्मा बिका लुज़ना व अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर फरहमना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह हम तुझसे ही इल्तिजा करते हैं, तेरी ही पनाह लेते हैं, तेरे ही करीब आते हैं। तू ही रहीम है, तू ही करीम है, हम पर रहम कर, हम पे मगफिरत कर, तू ही बख्शने वाला है। लिहाजा अल्लाह ताला से मांगेंगे तो मिलेगा। और ये रहमत, ये बरक़ात हमें मिलेंगी कहाँ से? हम मौजूद हैं करबला मुक़द्दसा के अंदर। करबला मुक़द्दसा की पाक सरज़मीन से खड़े होके मुझे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, जिन्हें इमाम अली हादी अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, उनकी बयान करदा ज़ियारत जामिया से एक जुमला पढ़ना चाहूँगा। मुस्तजीरुम बिकुम ज़ाइरुल लकुम लाइज़ुन आइज़ुन बिक़ुबूरिकुम। मौला हम आपसे ही पनाह मांगने वाले हैं, मौला हम आपके ज़ियारत करने वाले हैं और आपसे ही हम पनाह और आप लोगों से हिमायत चाहते हैं। मौला आप हमारी हिमायत फरमाइए। अल्लाह का बेहतरीन मौजज़ा, अल्लाह तबारक व तआला की बेहतरीन अता, अल्लाह तबारक व तआला का बेहतरीन वसीला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। और अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरीके से रहमतें देता है। किस तरीके से? तरीका ये है, वसीला ये है, नजात का ज़रिया ये है, हदफ हमारा ये है। हदफ के बाद जो हकीकी हदफ है वो अल्लाह ताला है, पहुँचाने वाले अहले बैत अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है। इसीलिए मासूम अलैहिस्सलाम के सामने एक आयत जो बयान की गई, लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा गया कि आयत क्या है, तो मासूम अलैहिस्सलाम ने अबी जाफ़र अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, सियत वजूहुल लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने इनकार किया था उनके चेहरे बिगड़ गए। इसका मतलब क्या है? मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यानी अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिफ़ज़लिही, अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिफ़ज़लिही, यानी जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत का इनकार किया, वो इनकार करने वाले हैं। जब नबी की फ़जीलत सुनते हैं तो उनके चेहरे बिगड़ के रह जाते हैं। लिहाजा करबला मुक़द्दसा के अंदर हम मौजूद हैं। करबला मुक़द्दसा हमारे लिए अमान है, हमारे लिए नजात है, हमारे लिए वसीला है, हमारे लिए ज़रिया है और हमारे लिए बका का सबब है। करबला हमें हयात अता फरमाती है। मासूम अलैहिस्सलाम से एक हदीस तवील के अंदर आया है, कहा कि इन्ना औलन नास बिइब्राहीम अलल्लज़ीना तबऊहु व हाज़न नबी, कहा कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इब्राहीम अलैहिस्सलाम करीब थे, यानी औलन नास यानी लोगों में से सबसे ज़्यादा मुकर्रब जो थे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, और वो लोग थे जिन्होंने उनकी इत्तबा की थी, और ये नबी हैं।
जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी हैं। और फिर कहा कि व उलुल अरहाम बअदुहुम औला बिबअदिन फ़ी किताबिल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मैं मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ, तर्जुमा मिन्नो अन मासूम अलैहिस्सलाम ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि हीन कलाम हो सकता है लफ्ज़ जा भी जाओ, इसलिए मैं मफ़हूम कहूँगा आपसे। तो क्या हुआ, व उलुल अरहाम बअदुहुम औला बिबादिन फ़ी किताबिल्लाह, और उलुल अरहाम कहते हैं करीबी जो होते हैं ना, बात से ज़्यादा करीबी होते हैं, मतलब रिश्तेदारों में बेटा बाप के करीब होता है, और उसके बाद जो होता है वो चचा वगैरह थोड़े से बईद हो जाते हैं, लिहाजा करीब और दूर का ये नज़रिया आपके सामने वाज़ेह है। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जो हैं, जो उलुल अरहाम होते हैं, नज़दीकी जो होते हैं, वो ज़्यादा करीब होते हैं। फिर कहा कि मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते फ़नहनु औला अन्नास बिइब्राहीम अलैहिस्सलाम, मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़्यादा मुकर्रब हैं, हम ज़्यादा करीब होने वाले हैं। वनहनु वरसनाहु, और हमने उनसे विरासत पाई है। वनहनु उलुल अरहाम अल्लज़ीना वरसनल काबा, हम वो उलुल अरहाम हैं, वो हम रिश्तेदार हैं, वो अजीज़ हैं, वो करीबी हैं जिन्होंने काबा को विरसा में पाया है, काबा को विरसे में पाया है। वनहनु आलो इब्राहीम, और हम अहले बैत अलैहिमुस्सलामी आले इब्राहीम हैं। अफतरगबून अन मिल्लत इब्राहीम, ये इस्तिफ़हाम इनकारी किया जा रहा है। कहा कि क्या तुम मिल्लत इब्राहीम से बेरगबती कर रहे हो, तुम रगबत नहीं रखते हो क्या तुम? तो मासूम अलैहिस्सलाम का मकसद ये है कि हम आले इब्राहीम हैं, क्योंकि हम मुकर्रब हैं जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। अगर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तकर्रुब पैदा करना है, हम से तकर्रुब पैदा करें। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यकीनन सुलालतुल अंबिया हैं, इनका तकर्रुब हमारे लिए सबब निजात होगा। फिर मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को आज़माता है चंद तरीक़ों से, और उनमें से एक जो होती है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ व नक्सी मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। कहा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आज़माता है माल के कम हो जाने से, और किस चीज़ से हमें आज़माया जाता है? माल के कम होने से, औलाद से आज़माया जाता है, खौफ से आज़माया जाता है, और हमारे ये फल बूटे ये जो दरख्त होते हैं इनके ख़राब हो जाने से हमें आज़माया जाता है। इसमें जो सब्र करते हैं उनके लिए बशारत है। तो इसी बशारत के अंदर एक जो हमारे लिए खौफ की हालत में मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने का सवाब है ना, उसका नतीजा ही मुख्तलिफ है। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए आएगा खौफ की हालत के अंदर, जो खौफ की हालत के अंदर मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए आएगा, अल्लाह तबारक व तआला जिस वक्त लोग घबरा रहे होंगे, परेशान होंगे, मुस्तरिब होंगे, माँ बेटे को नहीं पहचान रही होगी, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इस ज़ियारत मासूम अलैहिस्सलाम का सदका होगा कि मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के नतीजे में उसे खौफ से अमान मिल जाएगा, वो राहत के अंदर होगा, उसे सकून होगा, उसे इत्मीनान होगा, उसे घबराहट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने वली खुदा की ज़ियारत खौफ की हालत में की थी, उसने वली खुदा की ज़ियारत परेशानी की हालत में की थी, उसने वली खुदा की ज़ियारत उस वक्त जब आने नहीं दिया जा रहा था उस वक्त ज़ियारत की थी। और ये मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की ज़ियारत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत खुसूसन बहुत सख्त रही है हमेशा से। यहाँ पे ज़ियारत के लिए आना हमेशा सख्त रहा है। आने वाले मुख्तलिफ़ परेशानियों से आते थे, मुख्तलिफ़ ज़हमतें बर्दाश्त करके आते थे। लिहाजा मासूम अलैहिस्सलाम की जो ज़ियारत है, मासूम अलैहिस्सलाम की जो ज़ियारत है वो हमारे लिए रहमतें लेकर आती है। इसलिए मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की जो, अच्छा एक मैं शेर अरबी का पता नहीं अब देखें आप पढ़ता हूँ आपके हुजूर, बड़े अच्छे लगे। इदना तुरबा तो करबला मा युखव्विफनल वबा इदना बाबुल हाजा इदना वल मजालिस वल अज़ा। हमारे करीब बाब हाजत हैं, हम वबाओं से नहीं डरते, हम मासूम अलैहिस्सलाम के करीब आने वाले हैं, हम मासूम अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं। फिर कहा हायल गाबी है नज़लत कुल मलाइकतुस समा, ये जो ज़मीन है ना करबला की, यहाँ पे आसमान के फरिश्ते नाजिल होते हैं। हा हुना मरकद हबीबिल मुस्तफ़ा या फ़ातिमा, यहाँ पर अल्लाह के दोस्त हबीब खुदा जनाब मुस्तफ़ा के बेटे का मरकद है यहाँ पर। या सैयदा युशफ़ी कुलमन वसल यम्मा औ हवा माइल कुल ज़मा,
यहाँ पे जो भी प्यासा आया उसे सैराबी हो गई, जो बीमार आया उसे यहाँ पर आकर शिफा मिल गई। या मरद यबअदना मिन्हु व हुवा इब्न हामिल हुमा, हमें कौन सा ऐसा मर्द है जो इनसे दूर कर देगा, ये हमारी हिमायत करने वाले हैं, हर हाल के अंदर हिमायत करने वाले हैं। और हमारे पास करबला है, हमारे पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, हमारे पास अर्ज़ शिफा है। ये अर्ज़ शिफा हमें हर हाल में शिफा अता फरमाती है। एक और जो बात है, एहतियातुल किज़्ब युरिसुल फ़क्र, मैं एक हदीस जो कि एक हमारा इखलाक भी ठीक होना चाहिए, जो झूठ बोलते हैं ना उनको फ़क्र आ जाता है, गरीब होते चले जाते, फ़कीर होते चले जाते, झूठ की आदत नहीं करनी चाहिए। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा अतहर तो हमारे लिए वैसे ही इज़्ज़त का सबब है, शिफा देता है। तो यहाँ पे जो एक और बात आती है ना, आयतुल्लाह मरअशी नजफ़ी कहते हैं उनको तकलीफ़ हो गई, तो उनके साथ जो शख्स थे उनके चाहने वाले थे, सैयद शहीद थे, उनके साथ उनके बहुत चाहने वाले थे, उनके साथ से कहते हैं कि उन्होंने कहा कि दरवाजे पर रुक जाओ, मैं इमाम बारगाह के अंदर जा रहा हूँ। अंदर गए, उन्हें देखा काफ़ी देर हो गई है, क्योंकि मरीज़ थे, वो घबराए कि शायद कोई तकलीफ़ हो गई है, अंदर किस तरीके से मैं इन्हें जाकर देखूँ। जाके जो देखा, आयतुल्लाह मरअशी नजफ़ी ने आगे से कमीज़ हटा रखी है और अपने पेट को मिंबर से मस कर रहे हैं, मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपने पेट को मस कर रहे हैं। कहने लगे ये क्या हुआ, आप ये क्या कर फरमा रहे हैं? कहा कि मेरा तेहरान में ऑपरेशन होने जा रहा है, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस मिंबर से शिफा तलब कर रहा हूँ। और कहते हैं कि जनाब आयतुल्लाह मरअशी नजफ़ी को ले जाया गया, ऑपरेशन हुआ, उनका ऑपरेशन कामयाब हो गया। यानी उन्हें यकीन था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुताल्लिका चीज़ें शिफा देती हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुताल्लिका मिंबर हमें शिफा देता है, मासूम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हमें शिफा देता है। इसी तरीके से आगा दुस्फुली लिखते हैं, कहते हैं कि एक ज़ियारत के अंदर मैं ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए जो गया, तो मैं ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए सहन में यूँ चक्कर लगा रहा था, घबरा रहा था, जाने से अंदर कैसे जाऊँ, किस तरीके से जाऊँ, कि मैंने देखा कि ना पीछे से मुझे आवाज़ आई। पीछे से जो मैंने मुड़ के जो देखा, एक मुजतहिद हैं, सैयद हैं, वो मेरे पीछे खड़े हो, कहने लगे अंदर क्यों नहीं जा रहे? कहने लगे मैं गुनाहगार, मैं ज़री के करीब कैसे जाऊँ, मैं किस तरीके से मौला के पास जाऊँ? तो फरमाते हैं क्या तबीब से भी कोई मरीज़ दूर हुआ करता है? हम सब मरीज़ हैं, हम सब मरीज़ हैं, हमने शिफा हासिल करनी है, मौला की बारगाह में जाके हमें शिफा मिलेगी। जाओ, अंदर जाओ, जालिए शिफा के ज़रिए से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, तुम्हें शिफा मिल जाएगी। लिहाजा कहते हैं मैंने जब ये बात सुनी तो मुझ में कुछ हौसला आया, कुछ मुझे घबराहट मेरी दूर हुई। मैं यकीन के साथ मासूम अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा मौला रज़ा मुझे शिफा अता फरमा दीजिए, मौला हमें शिफा अता फरमा दीजिए, जुमला मोमिनीन को शिफा अता फरमा दीजिए। जिस तरीके से आप जानते हैं रोज़ाना हम आपके लिए दुआएं मांगते हैं। इस स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ RI00964772 772911424, इस पर हमें प्याम अपने अरसाल कीजिए, मैसेज भेजिए, हम आपके लिए दुआ मांगने का शरफ़ हासिल करें। मिलते हैं वक्फे के बाद। काश मैं मेहदी दौरां का ज़माना देखूं, काश मैं मेहदी दौरां का ज़माना देखूं, काश मैं मेहदी दौरां का ज़माना बारवे हैदर कर्रार का चेहरा देखूं,
आगाज़ सहर, फिर अज़ाने अली अकबर से हो आगाज़ सहर, पीछे मेहदी के में ईसा का मुसल्ला। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबल फ़ज़्ल अब्बास। अज़ीज़ भाई, आप मेहरबानी करते हैं, हमारे मैसेज पढ़ लेते हैं और हमारे लिए दुआ करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी कमर में डिस्क डली हुई है जो आहिस्ता आहिस्ता मुझे हरकत से रोकती जा रही है। तकरीबन 20 साल हो चुके हैं, ऑपरेशन किया था और मैं इस चीज़ की हसरत रखती थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटा अता फरमाएगा। मेरा शौहर भी बीमार है। मैं आपसे दुआ करती हूँ और दुआ की इल्तिमास करती हूँ कि आप दुआ कीजिए कि जिस तरह भी आप कर सकें हमारे लिए मौला से सिफारिश कीजिए। मौला हमारी परेशानियाँ दूर फरमाएँ। मौला अल्लाह ताला से हमें शिफा लेकर दें। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी दुआ को कबूल फरमाएँ। एक और मोमिन लिखते हैं, सलाम ए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप पर कुर्बान हो जाऊँ। आज पहला दिन है कि मेरा शौहर सोया है, उसे बीमारी हो गई है, न जाने क्या, कि वो सो नहीं सकता है। दुआ कीजिए मैं उसके लिए कि उसकी जो परेशानी है दूर हो जाए, उसकी क़ुव्वत इरादा कामयाब और मज़बूत हो जाए ताकि वो इन बीमारियों से अपना ख़ुद मुकाबला कर सके। अल्लाह ताला उसे सेहत अता फरमाए। एक और मोमिन लिखते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सलाम हो तमाम मोमिनीन पर, तमाम आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की खिदमत करने वालों पर, और दुआ कीजिए कि मेरी बेटी मरीज़ है और एक और बहुत ज़्यादा मुहिम हाजत भी है। मुझे बहुत ज़्यादा दुआ की इल्तमास है आपसे, और मैं हर रोज़ ज़ियारत आशूरा पढ़ती हूँ और बहुत से लोगों से सिफारिश की है कि हमारे लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला आपको मुवफ़्फ़क़ करे। बहुत ज़्यादा दुआ की तलबगार हूँ। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं। एक और मोमिना लिखती हैं, मेरा नाम मुहद्दिसा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। आपको अल्लाह का वास्ता दुआ कीजिए कि मेरी ज़िंदगी ख़राब ना हो। बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा है। इन चंद सालों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिए। खुदावंद मुताल इमाम हुसैन का सदका आपकी परेशानी दूर फरमाए। फिर एक और मोमिन लिखते हैं, सलाम हो मेरे मौला पर, सलाम हो उनके बीमार बेटे पर। मौला हमें जो बीमारी आ गई है, जितनी जल्दी हो सके ये कोरोना का मर्ज़ हमसे दूर कीजिए। मौला से दुआ कीजिए, आप साहिफ़े शिफा हैं, हमें शिफा अता फरमाइए। मौला आपकी दुआ कबूल फरमाएँ और आपको शिफा अता फरमाएँ। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फ़रज।